ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا آية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزل عليكم بعض من قبل وأعذب عذابا وأعذب أحدا من العالمين. إنك أنت العزيز لا إله إلا من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن نقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإنه في الآخرة مشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیسا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگ سبھی خیریت سے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں بھی اس وقت بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں. آج ذرا ہم آئے ہوئے تھے شہر خاموشاں کے اندر، قبرستان کے اندر. یہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں، بہت ہی پیارے دوست ہیں. ان کے والد صاحب کی یہاں پر قبر ہے. تو وہ ہر سال نا تقریباً رمضان کے اندر وہ اس چیز کی وہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ وہ اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کا ان کی قبر کے اوپر وہ اہتمام کرواتے ہیں. تو آج ہم آئے ہوئے تھے ان کی قبر کے اوپر قرآن مجید مکمل کرنے کے لیے. یہ پیچھے آپ کو وہ بچے بھی نظر آ رہے ہوں گے جو کہ کافی تعداد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا چلو آپ دوستوں سے ملاقات بھی کر لی جائے، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے آپ دوستوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ آپ کو یہ شہر خاموشاں بھی دکھا دوں. یہ دیکھ لیں، یہ آپ کو پیچھے یہ جتنی بھی تا حد نگاہ آپ کو یہ قبریں ہی قبریں نظر آ رہی ہیں. دوستو اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو یہ ہمارا آخری گھر ہے. دنیا کے اندر ہم جتنے بھی مزے کر لیں تو یقین جانیے آخر ایک نہ ایک دن ہم نے اس گھر میں اس قبر کے اندر ہم نے ضرور بے ضرور آنا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اس قبر کے اندر انسان کے صرف اور صرف اعمال چلتے ہیں بس، اور کچھ بھی انسان کا وہ ساتھ نہیں ہوتا. اگر اعمال اچھے ہیں تو یاد رکھیے یہی قبر انسان کے لیے جنت بن جاتی ہے. اچھا یہ ہمارے دوست یہ دیکھیں، یہ ان کے والد صاحب کی قبر ہے. یہ دیکھیں یہ ان کے والد صاحب کی قبر ہے. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یقین جانیے دوستو بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے ماشاءاللہ. فوت ہو گئے. محکمہ پولیس کے اندر تھے، ملتان میں ڈیوٹی کر رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے ان کی وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ ہوئے تھے تقریباً 2008 کے اندر، ہفتے کا دن تھا. تو اس دن یہ فوت ہوئے تھے. ماہر منظور صاحب ان کا نام تھا. اور یقین جانیے جب ان کا جنازہ ہوا تو جنازے کے اندر اتنی عوام آئی تھی کہ جس کی انتہا نہیں. اور اس وقت آپ یوں سمجھیے چونکہ میں مدرسے کے ماحول سے نکل کر آیا تھا اس وقت، اور یہ مسجد کے ماحول کے اندر میں پہلی مرتبہ آیا تھا. تو یہ میری زندگی کا آپ یوں سمجھیے کہ گاؤں کے حساب سے ایک عام بندے کا جنازہ اتنا میں نے بڑا دیکھا تھا. بہت زیادہ عوام تھی، بہت زیادہ عوام تھی. تو یہ کیا تھا؟ یہ صرف اور صرف یہ ان کی اچھائی کی وجہ سے تھا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے. باقی یہ دیکھیں یہ قبر ہے، یہ ان کے بھائی کی ہے. آگے یہ ان کے بھتیجے کی ہے. یہ پیچھے ان کے وہ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. یہ ان کا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. سارے کے سارے اس وقت ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز تھی. ایک دفعہ نا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالی وہ کسی قبر کے اوپر بیٹھ کر نا تو وہ قبر والے کو مار رہے تھے سوٹوں کے ساتھ. تو کسی نے کہا بہلول تجھے کیا ہو گیا؟ تو یہ کیوں مار رہا ہے قبر والے کو؟ اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو مر گیا ہے. تو اس پر حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے در حقیقت میں اس کو اس وجہ سے مار رہا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیسے جھوٹا ہے؟ اس پر حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ یہ اس وجہ سے جھوٹا ہے کہ جب یہ زندہ تھا تو یہ کہتا تھا کہ فلاں زمین میری ہے، فلاں گاڑی میری ہے، فلاں بلڈنگ میری ہے، اتنے مربع میرے پاس زمین ہے اور میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. اب اگر یہ ساری چیزیں اس کی اپنی ہوتی
तो वो इन चीज़ों को वो कब्र में लेकर आता, लेकिन वो इन चीज़ों को अपने साथ वो कब्र में क्यों नहीं लेकर आया? तो ये झूठा ही था ना, अगर इसकी अपनी होती तो कब्र के अंदर ज़रूर लेकर आता। तो दोस्तों सच्ची बात यही है कि ये जितनी भी चीज़ें हमारे पास, गाड़ियाँ होगी, बिल्डिंग होगी, जो कुछ भी हो गया, ये हमारा अपना नहीं है। ये तो आगे जो आने वाली नस्ल है, ये सब कुछ उनकी तरफ मुंतकिल हो जाता है। और इंसान के अगर चलती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आमाल ही चलती हैं। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर इंसान के अच्छे अमाल हैं तो इंसान फिर मज़े ही मज़े हैं इस कब्र के अंदर। और अगर इंसान के वो आमाल अच्छे नहीं हैं तो फिर दोस्तों याद रखो, ये जो कब्र है ना, फिर यही कब्र इंसान के लिए वो एक जहन्नम का गड्ढा बना दी जाती है। बहरहाल दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सब को नेक और अच्छे अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये भी हमारे दोस्त हैं अरशद, महर अरशद, ये उनके रिश्तेदार ही हैं। ये भी बेचारा बहुत अच्छा इंसान था और ये नौजवानी की हालत में ये इंतकाल कर गया था। बिल्कुल यंग नौजवान था और डॉक्टरी वाले शोबे के साथ ये वाबस्ता थे। और इनकी जो मौत है ना, यकीन जानिए दोस्तों, बहुत अजीब तरीके से हुई। ये ना डेथ होने से पहले ये बेचारे काफ़ी बीमार हो गए थे, तो काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन कोई इनको ना वो असर नहीं हो रहा था। तो फिर लाहौर के अंदर मेरे उस्ताद जी होते हैं, जो कि अब इस वक्त दुनिया के अंदर नहीं रहे, बल्कि वो दुनिया से चले गए हैं। तो जब उस्तादों ने उस नौजवान को देखा ना, तो बड़े परेशान हो गए और मुझे कहने लगे कि आप ऐसे करें, इस नौजवान को आप वापस ले जाएं। तो वो उस्तादों की जो कैफियत थी, वो ऐसी कैफियत थी कि उस वक़्त मैंने भी अंदाज़ा कर लिया था कि यार जो मामला है ना, बहुत ज़्यादा वो सीरियस है। और फिर वही हुआ कि जब हम घर के अंदर लेकर आए तो तकरीबन 3-4 दिनों के बाद ना इस नौजवान के इंतकाल हो गया। अब देख लो, सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है, बस अजीज़ रिश्तेदार हैं वो कभी कभार आ गए फातिहा खानी करने के लिए। और बाज़ लोग तो अल्लाह माफ़ करे ऐसी होती हैं कि उनकी कब्र के ऊपर फातिहा खानी भी करने वाला कोई नहीं होता दोस्तों। तो हम फिर कोशिश यही करें कि अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें, इसलिए कि आज हमारे पास चांस है, आज हमारे पास वक़्त है कि हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। हमारे जितने भी गुनाह हों, अल्लाह हमसे राज़ी हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब हम मर गए उस वक़्त हम तो चाहेंगे कि रब हमसे सुलह करे, लेकिन रब कहेगा कि नहीं, अब सुलह का टाइम वो गुज़र चुका है, अब मैंने तुमसे सुलह नहीं करनी। तो दोस्तों ये हमारे पास ये वक़्त, अब देखें ना, इस कब्रिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा, कोई छोटा कब्रिस्तान नहीं है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अब इसके अंदर पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, कितने पेशावर लोग पड़े हुए हैं। वो लोग पड़े हुए हैं कि जिनके आगे पीछे बड़ा इस्तकबाल होता था। और वो कहते हैं ना, वो एक शेर है, गरूर था नमूद थी, हटो बचो की थी सदा, अब मैं आपसे पूछता हूँ लहद का भी पता नहीं है। तो ये देख लें, अब इस कब्रिस्तान के अंदर पता नहीं कितने बेचारे लोग पड़े हुए हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर। वो लोग कि जो अपने जिस्म के ऊपर मक्खी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या है, सारे के सारे बेचारे वो शहर खामोशा के अंदर पड़े हुए हैं। हज़ारों मन मट्टी है और उसके नीचे वो सो रहे हैं। तो अगर किसी का कोई दिल चाहा तो आ जाते हैं, और अगर कोई नहीं तो फिर कोई भी नहीं आता। तो बहरहाल दोस्तों, ये आज मेरा जो व्लॉग बनाने का मकसद वो यही था, वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि हम कोशिश करें कि अपने रब को राज़ी कर लें। और जिस तरह कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो ये तो फिर हमारे लिए और भी बहुत ज़्यादा आसान है। मौलाना मोहम्मद व हुस्न व जमालिही व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम, हम सब के पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह, इसके अंदर अदब के लिहाज से, लफ्ज़ के हिसाब से जो इस तरह की भी गलती होगी, मेरे मालिक हमें माफ़ फरमा। ऐ मेरे मालिक, इस कुरान मजीद का सवाब हदियतन तोहफ़तन हज़रत आदम से लेके आज तक जितने मुसलमान फौत हो चुके, तमाम की रूह को इसाले सवाब करते हैं। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस इस कलाम पाक का सवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रात सहाबाए किराम, ताबीन, तबा ताबीन, औलियाए किराम, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस माहर मंजूर साहब और उनके भाई फ़तेह मोहम्मद साहब और उनकी फ़ैमिली के जितने भी मेम्बर्स
इस कब्रिस्तान में मदफून है, या अल्लाह तमाम के रूह को इसाले सवाब करते हैं। या अल्लाह तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह तमाम के गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह तमाम के लिए कब्र का सफ़र आसान बना। ऐ मेरे मालिक, हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी औलाद को अपने वालिद के लिए सदक़े जारिया बनने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी औलाद को अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए कोई ऐसा काम करने की तौफीक नसीब फरमा कि जिसका उनको सारी ज़िंदगी सवाब मिलता रहे। या अल्लाह उन्हें तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी जो भी परेशानी है तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा। ऐ मेरे मालिक, उनकी जो भी हाजतें हैं तमाम हाजतों को ख़जाने गैब से पूरा फरमा। या अल्लाह इनकी वालिदा मोहतरमा बीमार रहती हैं, मेरे मालिक उनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमारे बहुत प्यारे दोस्त शाहिद साहब, उनके पास बेटा नहीं है, या अल्लाह उन्हें बेटा अता फरमा। या अल्लाह ख़जाने गैब से उनकी मदद फरमा। ऐ मेरे मालिक, बेटा और बेटी देने का जो ख़जाना है वो तेरे पास है और हम तुझी से सवाल करते हैं। ऐ मेरे मालिक, उन्हें बेटा अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, उनकी ज़िंदगी की जो भी हाजतें हैं ख़जाने गैब से पूरा फरमा। ज़िंदगी के हर मोड़ पे आसानी वाला मामला फरमा। या अल्लाह इन चारों भाइयों को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। ज़िंदगी के अंदर बार बार ये मौका नसीब फरमा। या अल्लाह इन्हें तौफीक नसीब फरमा कि ये अपनी वालिदा मोहतरमा को भी तेरे घर की ज़ियारत करवा। या अल्लाह इन्हें ये तौफीक नसीब फरमा कि ये तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की भी ज़ियारत उनको नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमारे साथ आसानी वाला मामला फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। दोस्तों, अब माशाअल्लाह हम अपना जो है कुरान मजीद हमने मुकम्मल कर ली है और दुआ खैर भी हो गई है। तो अभी हम इंशाअल्लाह अपने जी ठीक है, जी ठीक है। तो अभी हम फिर अपने वो घरों की तरफ चल पड़े हैं। ये देखें, ये दोस्त मेरे साथ हैं। ये मेरा प्यारा स्टूडेंट है माशाल्लाह। उमर, सलाम लेना यार, कैसा हाल है? ठीक है यार। आपने ना रात को एक काम करना जी, जब मैं तरावी जब दूसरी दो पढ़ाऊँ ना जी, तो आपने ना उधर खड़े होकर एक वीडियो बना, ठीक है? उसके अंदर मैं और जितने हमारे नमाजी है ना जी, वो सब है, वो मैंने अपलोड कर दी है। ये आज आपकी जिम्मेदारी है माशाल्लाह जी। और दोस्तों, कैसा हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? तो बस ये चीज़ मैं आज आया था, टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से मुलाकात कर लीजिए। असल में ये बहाना था मुलाकात का। तो बस आप ज़रूर कोशिश करते रहा करें कि शहर खामोशा की तैयारी करें, कब्रिस्तान की तैयारी करें। इस कब्र के अंदर हमने आना है और जितना हो सकता है नेक अमाल करने की कोशिश करें। जी ठीक है, ठहरो कर दे, एक मिनट ठहरो, आ जाओ। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप टेंशन न लें इंशाल्लाह। तो इसी के साथ दोस्तों फिर इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात करते हैं। बस आप लोगों की खिदमत के अंदर एक गुजारिश ज़रूर है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए और अच्छे कमेंट के ज़रिए से जज्बात का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का यकीन जानिए बहुत अशद से वो इंतज़ार रहता है। और इतना शायद मुझे वीडियो बनाने की खुशी नहीं होती जितना कि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी मोहब्बत का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात करते हैं। बाय बाय कर ज़हीर। हाँ, ये देखो, ये बच्चे बैठे हैं जी, हमारे स्टूडेंट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप छाड़ ना यार, आप मुदस्सिर को रहने देना, उमर को इसको छोड़े। और दोस्तों ये देखिए हमारे ये बच्चे बैठे हुए हैं जी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये माशाल्लाह ये सारे बच्चोंगड़े बैठे हुए हैं जी गाड़ी के अंदर। वो हमारा बुगड़ी बैठा हुआ। बुगड़ी अगा दफा मुँह रहा कर, बुगड़ी इधर आ मेरे पास आ। बुगड़ी नहीं है हाँ ना? अच्छा, मैं फिर बुगड़ी समझ रहा। चलो ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।